I've got that bottle and I've written SRK's blood. SRK's blood? What is Varun implying? I'll keep that as a memory. वरुण धवन की बातों को सुनकर आपके भी होश उड़ गए ना? उनके जो खून का बॉटल है मेरे पास है. कृष्णा है क्या तुम्हारे पास अभी? हाँ है. देना मत किसी को. लेकिन वरुण ऐसी शॉकिंग बातें क्यों कर रहे हैं? He's one hero I think who bleeds very well. क्या ये सनसनीखेज बातें वरुण का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है? The blood that most actors use is bad. शाहरुख खान का जो खून है जो वो लोग यूज करते हैं वो असल में it looks like real blood की किसी के खून से बन के बना है. Thank God, वरुण यहाँ SRK पर यूज्ड फेक ब्लड की बात कर रहे हैं. There's a technique to the way he bleeds and he showed me that. वरुण ने तो हमें डरा ही दिया था. वैसे आपको बता दे कि वरुण धवन ने ये रेवलेशन किया मामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां उनसे एक रिपोर्टर ने उनके दिलवाले को स्टार शाहरुख खान के बारे में कुछ स्पेशल सीक्रेट्स के बारे में पूछा, जिसके जवाब में वरुण ने सनसनी मचा दी. हम लोग हमेशा फिल्में में देखते हैं कि जब हीरो को चोट लगता है तो खून they put that blood. The blood that most actors use is bad. The blood that he uses, शाहरुख खान का जो खून है जो वो लोग यूज करते हैं वो असल में it looks like real blood की किसी के खून से बन के बना है. It's so detailed and so real. I think that's why he's one hero I think who bleeds very well on screen. I think that's one thing that I guess a lot of people don't know. Another thing is that if he's an outstanding father. I've never met a father like him. He just goes weak in his knees when it's related. Like, I hope that one day if I become a father, I can be as good a father as he is. Being as busy as he is, he'll still go out of his way to make time for his children, which is commendable, I think. और मौके का फायदा उठाते हुए किसी ने वरुण से पूछ लिया कि क्या वरुण SRK के सबसे छोटे बेटे अब्राम के साथ खेलते हैं या नहीं? I most definitely played with him and I think he's very fond of me, but I will not talk much about him because I know Shahrukh sir has been warned by Gauri ma'am not to talk about Abram, तो मैं तो बात ही नहीं करना चाहिए मुझे. और हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं वरुण. वैसे वरुण यहाँ काफी फन मूड में थे और जब उनकी जान पहचान के किसी रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछ लिया कि व्हाट इंस्पायर्स हिम, तब उन्होंने इस रिपोर्टर की ही फिरकी ले ली. आपसे बहुत इंस्पायर्ड हो. आई थिंक पूरी जो प्रेस है, फिल्म फ्रेटर्निटी है, वो आपसे इतनी इंस्पायर्ड है. आप छुपो मत. आप लगातार मतलब आप जो हो 3 साल से जब से मैंने डेब्यू किया, आपने भी डेब्यू किया है, मेरे को लग रहा है आप छोड़ते नहीं हो. मतलब आपका मतलब जो पकड़ के रखा है आपने. साथ ही वरुण ने दिलवाले और बाजीराव मस्तानी क्लैश के बारे में भी अपना ओपिनियन देते हुए कहा, I'm actually not that worried about दिलवाले because शाहरुख खान है फिल्म में, so box office wise little bit I guess both could be affected by that matter, but I think हमारे फिल्म का नाम ही दिलवाले है, so हम लोग कोशिश करें कि हम लोगों के दिलों में एक जगह बना ले पहले. As a viewer I feel it's a very exciting time for cinema goers. अगर आपको फिल्म देखनी है, उसी दिन पे 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है तो बहुत एक्साइटिंग चीज हो जाती है. Oh I can go see this one, oh I can go and see that one. और इसके बाद वरुण ने आइकॉनिक SRK काजोल जोड़ी की जमकर तारीफ की. They just have this kind of chemistry or aura around them that you feel like 2 people in love have, or 2 people who've been in love for so many years have, and both are extremely unique and amazing in their own way. They just bring that electricity, that chemistry, I think, on the set where when they are standing in the same frame especially, it just happens. It's like putting on a light in a room. And then someone asked him whether Ranbir Deepika will become iconic like SRK and Kajol one day. जिस पर देखिए वरुण का ये smart diplomatic response. I don't know, each one to themselves. Ranbir and Deepika are the Ranbir and Deepika of this generation, I'd say. I think each one has to be themselves. And sweet Varun turned nasty जब उनके दोस्त अर्जुन कपूर की बात आई and gave the media a few tips about how to baffle him during his media interaction. खतरों के साथ तो वो खेलते हैं रोज. अभी आएंगे इधर, बहुत भारी आवाज में बात करेंगे आप सबके साथ. बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. इनफैक्ट आज रात को हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनको पूछना कि आप हैलोवीन के लिए किसके साथ जा रहे हो और किन किन लड़कियों को बाहर लेके जा रहे हो. अर्जुन जहां एक तरफ वरुण ने कहा कि he likes the idea of 2 films releasing on one day, वहीं यहां मौजूद डायरेक्टर राजू हिरानी had a different opinion. बेहतर तो सबके लिए ये हुआ कि एक ही फिल्म एक दिन पे आए, पर 52 हफ्ते होते हैं साल में और फिल्में बनती कुछ 200 से ज्यादा, तो अब करेंगे क्या, कहीं क्लेश होगा ही होगा.
और हिरानी ने ये भी कहा कि ब्लॉकबस्टर से ज्यादा हार्टबस्टर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझसे कहें कि मुझे क्या चूज करना है कि ब्लॉकबस्टर या हार्टबस्टर, आई विल चूज अ हार्टबस्टर। फिल्म याद में रह जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिल्म चले 2 हफ्ते चले, अगले साल किसी को याद ही नहीं रहे, पैसा तो कमा ले मगर अगले साल याद ही नहीं रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। He also shared with us details about his Sanjay Dutt biopic. जो एक रेडी हो चुकी है वो संजू की बायोपिक है, वो रेडी हो चुकी है। वो अगले साल होपफुली हम शूटिंग शुरू करेंगे। The moment I heard that story, Abhijat and me sat with him for 25 days and I discovered that this is a story which we want to say because it's a human story. I think it's probably the most entertaining film we would ever do. It's emotional, it's got a lot of funny moments. It's a story about father, son, his friends, his world. So it's a story which is completely in the same league as the kind of cinema we've done. Raju Hirani also threw some light on the casting in this biopic. When you decided to work on the Sanju biopic, did you have Ranbir in mind right from the start? Biopic, what was happening that it's not a story we had to really write or create from scratch. When you're writing a story, you're creating and you're moving in many directions and finally you reach a script. This script, when he heard it from Sanju, when he heard his life story from Sanju, we knew, okay, more or less this is it. So we had a script in mind and we had to think of an actor. So Ranbir definitely was the most obvious choice for us. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि the film won't be glorifying Sanjay Dutt even though he's a friend of the directors. The film is not intending to glorify him at all. So it's not only Sanju, we've met 10,000 other people. Film is spending 3 years of a life on something. I can't make a film to glorify somebody. Never. I will make a film which is honest. Rajkumar Hirani also shared his views about films. वक्त बदल गया। आप 10-15 साल पहले देखिए, 15 साल पहले का सिनेमा एक ही किस्म का सिनेमा होता था। हीरो हीरोइन, आइदर लव स्टोरी और एक्शन। उसी दायरे में उतने गाने, वही किस्म के गाने, वही स्विट्जरलैंड में जाके शूट करना। वो माहौल बदल रहा है आज। अलग अलग किस्म का, एक मसान भी बन रही है, टिपिकल मेन स्ट्रीम कमर्शियल, एक बजरंगी भाईजान भी बन रही है। हर किस्म का सिनेमा बन रहा है और लोग जा रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर लिविंग इन ग्रेट टाइम्स फॉर सिनेमा। वैसे जिस बजरंगी भाईजान के बारे में हिरानी ने बातें की, उसके डायरेक्टर कबीर खान भी इस इवेंट पर प्रेजेंट थे और कबीर ने यहाँ हमारे साथ शेयर किया कि वो भी एक बायोपिक बनाना चाहते हैं। बायोपिक एक ऐसा जॉनर है जो मुझे हमेशा एक्साइट करता है बिकॉज मुझे लगता है कि हमें अपने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से और कहानियां लेना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आगे कुछ बायोपिक्स पे काम करूं, कुछ पे रिसर्च किया भी है मैंने, लेकिन ऐसा कोई कुछ लॉक नहीं किया है। एंड कबीर also shared some hard and true facts about Bollywood. इस फिल्म इंडस्ट्री में जब सक्सेसफुल होते हैं आप तो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि दुनिया आपको राजा बना देती है, और जब आपकी फिल्म कामयाब नहीं होती तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। जब आप सक्सेसफुल हैं दैट्स द टाइम जब आपको और पुश करना चाहिए नए आइडियाज के लिए, बिकॉज कोई आपको उस टाइम क्वेश्चन नहीं करने वाला है। आपके पीछे अगर एक ब्लॉकबस्टर है they let you make whatever you want to make. Kudos to you, Kabir, for your candor. After such serious discussion, Kabir shared a light-hearted story about the beginning of his journey in this industry. मैं डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर स्पेशली अफगानिस्तान में, वो मैंने लिखना शुरू किए और उनसे एक स्क्रिप्ट बनी काबुल एक्सप्रेस, जो फिर मेरी पहली फिल्म बनी। बनने के बाद, स्क्रिप्ट लिखने के बाद काफ़ी टाइम लगा मुझे प्रोड्यूसर से मिलने में, एक्टर से मिलने में, 1 साल कम से कम गया। फाइनली 1 साल के बाद यशराज फिल्म से एक फ़ोन आया मुझे, जो पहले मैंने सोचा कि मेरा कोई बकरा बना रहा है, क्योंकि मिनी MTV में थी और मुझे लग रहा था कि ये मैं जाऊंगा यशराज और वहाँ गेट के बाहर से साइरस ब्रोचा कूदेगा और मेरा बकरा बना देंगे। लेकिन फाइनली मैं गया और ब्रोचा वहाँ था नहीं। मैं अंदर गया और आदित्य चोपड़ा मिले। वो तब तक तो हमने सोचा था आदित्य चोपड़ा हैं भी, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं पता नहीं था, लेकिन किसी और ने मेरी स्क्रिप्ट उनको दे रखी थी और उन्होंने पढ़ी और उन्होंने बोला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, When can we start? बस वैसे ही शुरू हुआ फिर काबुल एक्सप्रेस की जर्नी, और उसके बाद फिर एक 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मेरा था यशराज के साथ। Well, इस मामी इवेंट के दौरान मौजूद थी फिल्म मिस्टर इंडिया टीम 2। इंटरेस्टिंगली यहाँ रिवील हुआ कि जावेद साहब को मिस्टर इंडिया फिल्म का आइडिया कहाँ से आया। I'll tell you this little story that a film was being started by Mr. Pramod Chakravarti, and Amitabh Bachchan was the leading man, and
as luck would have it, he was in outdoors. So they took first shot of a tape recorder and his voice was played. That was the Muhurat shot. And when I read this, I was rather amused, and I thought, all right, if his voice can cause the Muhurat, his voice can be used in the whole film also. So that is where this idea of Invisible Man came. वहीं it was confirmed at the media interaction that a sequel of this film will be made. तैयारी तो यूं है कि हम तैयार हैं करने के लिए, पर एक अच्छा स्क्रिप्ट बन के सामने आए। हमारी पूरी कोशिश है, बल्कि एक पक्का इरादा है कि इसका सीक्वल बनाएंगे और जरूर बनेगा। Well, we can't wait. वैसे अनिल कपूर ने हमें ये भी बताया कि वो इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ काम करने को लेकर कितने एक्साइटेड थे। Shri was and is the biggest and the best actress of our country, and so you know, acting opposite her was a dream for me always, and I knew that उनके साथ काम करके मुझे बहुत फायदा होगा और मैं भी एक A-list हीरो बन जाऊंगा इनके साथ काम करके। तो कुछ चटपटी कहानियाँ, कुछ सीरियस बातें और कई रिवील्ड सीक्रेट्स के बीच मामी का ये दिन रहा काफी इवेंटफुल और एंटरटेनिंग।